data encapsulation, inheritance, polymorphism, message passing, dynamic binding. In the last lecture, we have already learned the 6 concepts among this, and before starting the remaining 2 concepts, we will just quickly revise. Object, real world entity. In a program, it will have specific attributes and have behavior, and it will be identified with a unique ID, and the code will build around it. These are the ways to represent objects. This is an example with showing the attributes, how it consists, the data part for the object, and how the functions has to be there to operate on that data. Because ultimately, function is the one which will give you the output for that program. So if there is objects data, there has to be the function or code part to operate on that data. Class gives the definition to the object. So class is defined as a user-defined type of an object which will enclose all the attributes and the functions of the object inside it. This is how we represent class, pictorial representation. Class person having 3 attributes and 2 methods or functions. And once you create a class, you create hundreds of copies from that class. Once you create a class, you can create hundreds of copies of objects from that class, and each object will have the same attributes, though it will have different values to those attributes, assigned to those attributes. As I've given you the example, if student is a class, then the students in your class, they are objects, right? So maybe the different students like Ram, Shlesha, they are what? They are the objects of the class student. They are having the different names, age, and they are having different email IDs, addresses, contact numbers. So values to the attributes will be different. They will execute the same function, like they will score in exam. So methods shared by the objects will be same. Attributes shared by the object will be same, but the values assigned to the attributes will be different for every object. This is the syntax for defining class. If you create a class, you can create the objects from that class. They will be exactly the same. This is how we create class name, and we just give space and then the object name. Car, class name, space, Maruti, name of the object. So it signifies that Maruti will be having the attributes and the functions which are defined in this class. Okay, can be used by this object. Data abstraction, we studied that it is the act of representing only essential features. तो आपको कस्टमर को या एंड यूजर को सिर्फ उतनी ही चीजें शो करनी है, वही एट्रीब्यूट शो करने हैं ऑब्जेक्ट के जिनसे कस्टमर कंसर्न्ड है, और नॉट द बैकग्राउंड डिटेल्स. ओके, सो डोंट शो द बैकग्राउंड डिटेल्स टू द यूजर, just show the essential attributes or the most relevant attributes. As I gave you the example of data abstraction, कि जैसे अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है या स्टूडेंट एडमिशन का सॉफ्टवेयर है, तो उसमें ऑब्वियसली एट्रीब्यूट जो होंगे वो स्टूडेंट की नेम, ब्रांच, सेक्शन, एड्रेस, ये सब होंगे. लेकिन अगर आप स्टूडेंट का कोई फैशन क्लब से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसमें रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स अलग हो सकते हैं, हेयर कलर, आई कलर, मे बी हाइट. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट व्हाट आर द रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो एट्रीब्यूट चेंज हो सकते हैं, उस यूजर आपके एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि इस केस में कौन से रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स है. ओके, सो दे मे चेंज, बट यू हैव टू सिलेक्ट द एब्स्ट्रैक्ट वन. एंड हेंस क्लासेस आर आल्सो नोन एज एडीटी. ओके, दो दे आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, क्लासेस को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट्स ही इंक्लूड होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को. नेक्स्ट कंसेप्ट, डेटा एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन यानी कि क्लास में जो आप ऑब्जेक्ट का डेटा और फंक्शंस टुगेदर रैप करके रखते हो प्रोग्राम लिखते वक्त, उसे बोलते हैं एनकैप्सुलेशन करना. और एनकैप्सुलेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस चीज से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्लास के किस डेटा को हम एक्सटर्नल एक्सेस देना है और किस डेटा को एक्सटर्नल एक्सेस नहीं देना. तो इसमें एक्सेस स्पेसिफायर का एक फीचर होता है जो आप आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में. तो ये फीचर आपको अलाउ करता है कि आप डेटा सिक्योरिटी रखें प्रोग्राम में, एंड इट हेल्प्स यू टू अचीव डेटा हाइडिंग और व्हाट वी कॉल एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग. इनहेरिटेंस एक सबसे इम्पोर्टेंट वन ऑफ द फीचर है ओपी कंसेप्ट में.
जिससे आप कोड को रीयूज कर सकते हैं। ये प्रोग्राम का डेवलपमेंट टाइम सेव करता है, क्योंकि आप इसमें एक लिखी हुई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास का कोड रीयूज कर सकते हैं अपनी नई क्लास के लिए। तो आप उसी क्लास से नई क्लास इनहेरिट करो, उसमें अपना कोड लिखो और आपका एक नया प्रोग्राम बन जाएगा, and it will save you a lot of time. You don't have to start writing from scratch your program. Okay, you just need to add your own features and just wrap it up. That's it. It saves a lot of time. इनहेरिटेंस आप आगे पढ़ोगे, इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासेस यू इनहेरिट द क्लास, और फ्रॉम वन क्लास हाउ यू इनहेरिट मल्टीपल क्लासेस. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस that you will learn in detail. But for now, you must understand the basic concept that once you define a class, so automatically the parent class के attribute जो होते हैं वो inherit हो जाते हैं उसकी child class में. और फिर आप अगर ऐसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस ऑब्जेक्ट में पेरेंट क्लास के प्लस उसके इस पेरेंट क्लास के प्लस इस डिराइव्ड क्लास के भी एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट में. This is showing the example of inheritance. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पर्सन क्लास, और इससे अगर आप इनहेरिट कर रहे हो एम्प्लॉय और स्टूडेंट जैसी दो क्लासेस, ठीक है, आप एक क्लास से कई क्लासेस इनहेरिट कर सकते हो, so there is no limitation. तो ऐसे केस में जो पर्सन क्लास के दो एट्रीब्यूट है ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे एम्प्लॉय क्लास में. सिमिलरली स्टूडेंट क्लास में भी ये दो एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे. तो आपको यहाँ उनको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि what you can do is you can redefine what features you want in that new class, वो आपको यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे नए से. तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के लिए मैंने स्कूल डिफाइन किया है एट्रीब्यूट, और एम्प्लॉय के लिए मैंने दो नए एट्रीब्यूट किए, कंपनी और सैलरी और. तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर्सन क्लास से अगर एम्प्लॉय इनहेरिट हुई है तो एम्प्लॉय में टोटल जब भी इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे तो इसमें 4 एट्रीब्यूट्स रहेंगे, नेम, एड्रेस, कंपनी. और जब भी स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में 3 एट्रीब्यूट्स रहेंगे, नेम, एड्रेस एंड. नेक्स्ट कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म. ability to take more than one form is known as polymorphism. Polymorphism के बेस्ट एग्जांपल्स जो OOP में है they are function overloading and operator overloading. इसका मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में ये है स्टूडेंट्स दैट आप सेम फंक्शन नेम मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं एक ही प्रोग्राम में, तो वो हो गया ओवरलोडिंग. ओके, वो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि आप उसे मल्टीपल रोल असाइन कर रहे हो. आप सेम ऑपरेटर सिंबल डिफरेंट टास्क के लिए अगर यूज कर रहे हो, डिफरेंट रिजल्ट देने के लिए यूज कर रहे हो, तो वो हो गया ओवरलोडिंग उस ऑपरेटर का, क्योंकि उस ऑपरेटर को ऑलरेडी एक मीनिंग था, आपने उसको और नया मीनिंग दिया, तो ये क्या हो गया, ओवरलोड करना. So that is how we can achieve the polymorphism with these two examples, that is operator overloading and function overloading. और फिर आप बोलेंगे अगर सेम नेम है फंक्शन का तो how the compiler will recognize this function, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम पे कंपाइलर को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एग्जैक्ट विच फंक्शन आई नीड टू एग्जीक्यूट. तो वो जो फंक्शन डिफरेंशिएशन है उसकी जो फंक्शन डेफिनेशन होती है वो डिपेंडिंग ऑन द 3 थिंग्स द कंपाइलर इज एबल टू recognize which I will have to exactly execute. तो टाइप ऑफ फंक्शन वहाँ चेक होता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास और टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पास, ये सब चेक होता है. उसके बाद कंपाइलर को इजी होता है कि मुझे कौन सा एग्जैक्टली फंक्शन इसमें रन करना है. ये चीजें जो है कंपाइलर की, ये सी कंपाइलर में नहीं होती. सो दैट्स व्हाई ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल. पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट ही नहीं है सी लैंग्वेज में, बट इट इज देयर इन C++. So we have already seen this example operator overloading. यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एडिशन ऑपरेटर को ओवरलोड किया है. आप ऐसे बहुत से ऑपरेटर हैं जिनको ओवरलोड कर सकते हैं. Okay, you will see those or you will learn those later in the overloading chapter of overloading. Here I have just shown you the example of a plus operator, how it is overloaded. अगर आप दो नंबर्स के लिए प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एडिशन रिजल्ट मिलेगा 5 + 3 8. अगर आप दो कैरेक्टर या स्ट्रिंग्स के लिए प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो आपको वहां कॉन्केटिनेशन मिलेगा. कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ना, ज्वाइन करना. तो अगर आप दो कैरेक्टर्स के लिए यही ऑपरेटर यूज कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर, so what is happening, A and B, it is not that ASCII value will be calculated and those two numbers will be added and some result will be generated. It is not like that. अगर दो स्ट्रिंग प्रोवाइड हुए हैं प्लस को तो वो कोई नंबर नहीं जनरेट करेगा एज अ रिजल्ट, इट विल जनरेट अ स्ट्रिंग एज अ रिजल्ट.
सो दो स्ट्रिंग का एडिशन भी स्ट्रिंग भी यहाँ पे रहेगा ए बी। ओके, और यहाँ लेकिन आपने नंबर प्रोवाइड किए हैं दो ऑपरेटर से, लेकिन यहाँ रिजल्ट जो है डिजिट आएगा। सो 5 + 3 8। So this is how we overloaded the operator. We gave multiple meanings to that operator. Similarly, function can also be overloaded. This is another example of polymorphism. यहाँ एक क्लास है शेप जिसमें ड्रॉ मेथड आपको दिखाई दे रही है, लेकिन तीन ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग आउटपुट आएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए जब ड्रॉ मेथड कॉल होगी तो सर्कल, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए बॉक्स और थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए ट्रायंगल ड्रॉ होगा। और ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स वी विल रीडिफाइन दिस मेथड एवरी टाइम, and these three methods will be there in the program. So when the object circle will call, so by checking the number of arguments passed, suppose we have passed here the radius, then seeing the only one parameter passed, argument passed, it will execute that procedure and then it will draw a circle. इस केस में बॉक्स ड्रॉ होगा। तो आप देख सकते हैं कि नाम सेम ही है, कैपिटल DRAW ड्रॉ, लेकिन एवरी टाइम द आउटपुट विल बी डिफरेंट। और ये आपको और इजी वे में समझ आएगा जब आप इसको एक्चुअली ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। देन यू विल सी हाउ द सेम नेम्ड फंक्शन इज गिविंग द डिफरेंट आउटपुट्स। Okay, so these were the concepts we learned on the until the last lecture. Let's move on. That is towards the next concept, dynamic binding. Sorry. Let us understand these terms by unfolding. First, we will understand the meaning of binding. So, binding मतलब linking. किसका linking? Procedure call का linking, जो कोड उसको एग्जीक्यूट करना है उसके साथ। तो एक कॉल जाएगा मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। और फिर जैसे आपने सी में किया होगा, लेकिन आप सी में क्या करते थे? डायरेक्टली फंक्शन नेम लिखते थे। अगर आपको कोई फंक्शन कॉल करना है सपोज सी में, तो आप क्या करते थे? सपोज आपके सी प्रोग्राम में एडिशन नाम का फंक्शन है, सो व्हेनेवर यू वांट टू कॉल दैट फंक्शन, आप लोग क्या लिखोगे मेन में? एडिशन, simply addition, opening and closing round bracket, semicolon. That is how you call the function in C. But in case of the C++, you create the object. तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल जाता है। तो ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं प्रोसीजर को, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक मैसेज। तो ये जो कॉल जाता है ना, तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म जैसी केस है जहाँ पे फंक्शन ओवरलोड हुआ है, तो कौन सा एग्जैक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट करना है? ये जो चीजें है ये डायनेमिक या रन टाइम पे डिसाइड होती है। दिस थिंग्स आर नॉट नोन इन द स्टैटिक टाइम। अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि डायनामिक और स्टैटिक का डिफरेंस क्या है। स्टैटिक मतलब जो चीजें पता होती है बिफोर स्टार्टिंग द और रनिंग योर प्रोग्राम, ठीक है। वाइल सेविंग योर प्रोग्राम, जो जो चीजें आपके पास है, सपोज आपके पास वेरिएबल की वैल्यूज है, अरे की लिस्ट है, तो ये जब अगर सारे आपके पास मेमोरी कितनी असाइन है वो करनी है, वो सारा डेटा है, तो इसको हम स्टैटिक चीजें बोलेंगे। तो थिंग्स नोन टू द प्रोग्रामर बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, तो can be termed as static data of the program. Dynamic is not known until the run time. मतलब जब आपका प्रोग्राम एक्चुअली रन प्रोसेस में है, तब जो चीजें होती है उसे हम डायनामिक बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे डायनामिकली अरे भी कभी कभी असाइन हो सकते हैं, राइट। यू मस्ट हैव लर्न द कांसेप्ट ऑफ न्यू, राइट। न्यू ऑपरेटर आपके सी में आपने पढ़ा होगा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड ऑल। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, बट आई वांट यू टू नो द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जैसी भी चीजें होती है, तो जहाँ रन टाइम पे डिसाइड होता है कि किस वेरिएबल को या किस अरे को कितनी मेमोरी देनी है, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रोग्राम साइड, ओके, दैट इज डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। सो ये जो डायनेमिक बाइंडिंग हम जो बोल रहे हैं ना, इस वर्ड का मीनिंग ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फंक्शन ओवरलोडिंग जैसे केस में एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करता है, तो कौन से फंक्शन में 4 या 5 सेम नाम के फंक्शन है आपके प्रोग्राम में, तो कौन से फंक्शन में उसमें से एग्जीक्यूट होना है, दैट इज नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग, एंड दैट इज परफेक्टली अचीव्ड बाय द C++ कंपाइलर, ओके। वो एग्जैक्ट वही कोड रन होता है जो उस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। और ये कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस 3 थिंग्स, टाइप ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट।
ये चेक होता है और उसके बाद आफ्टर चेकिंग दिस थिंग्स the compiler decides which function to be executed. इसी को बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग का कंसेप्ट. ओके, सो इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस. ठीक है, सो ये दोनों कंसेप्ट के साथ ये एसोसिएटेड है. Here you can see as we have seen in the above example. So inheritance से अगर हम यहाँ पे every object or every class is having the method draw, then unique to each object we have defined this draw method for this object and this object. Because I know that मुझे इस प्रोग्राम में 3 अलग अलग शेप्स ड्रॉ करनी है, तो मैं इस प्रोग्राम में पहले ही 3 मेथड्स लिखूंगी. मैं सबको सेम नाम दूंगी, मैं नाम चेंज नहीं करूंगी मेथड का. मुझे नहीं लिखना है draw 1 draw 2. I will keep the name same, draw, but I will change the parameters. What I am going to change? यहाँ मैं पास करूंगी maybe radius, okay? यहाँ मैं पास करूंगी बॉक्स के लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और ड्रॉ ट्रायंगल के लिए मैं पास करूंगी base and height. Okay, so depending on the number of parameters, the compiler will decide and will give me the exact output. So this is how dynamic binding takes place. Let's move on. The 8th concept and the last one, message passing. Message passing means, see, in a C++ program, there are number of objects you create. And obviously, these objects must communicate with each other. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक बैंक सिस्टम का, तो बैंक सिस्टम में कस्टमर और अकाउंट ये 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट? There could be many more objects like manager, admin and all. हम बात करते हैं कस्टमर और अकाउंट. अगर कस्टमर अकाउंट ऐसे 2 ऑब्जेक्ट है, तो कस्टमर ऑब्जेक्ट कैन सेंड रिक्वेस्ट टू द अकाउंट ऑब्जेक्ट फॉर द बैलेंस इंक्वायरी, राइट? इसे हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन होना, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन. क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में कम्युनिकेशन नहीं है, तो दैट प्रोग्राम इज यूजलेस. That program is a useless program if there is no communication in the program. अगर कोई किसी को कॉल नहीं कर रहा है, कोई फंक्शन रन नहीं हो रहा है किसी इसमें, तो क्या यूज है ऐसे प्रोग्राम लिखने का? बस एक स्टैटिक डेटा हो जाएगा. वो हमें चीजें रन करनी है, कोड रन करना है, तभी उसका कुछ आउटपुट आएगा. तो कम्युनिकेशन हैज टू बी देयर. तो यही कम्युनिकेशन जो है वो एक मैसेज फॉर्म में होता है, और वो जो मैसेज है वो इस टाइप का होता है. सी, दिस इज अ मैसेज इन ओपी प्रोग्राम. यहाँ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, एक नॉर्मल सीक्वेंस में आपको बताती हूँ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, उसमें एक कोई भी प्रोग्राम आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखोगे क्लास. क्लास में आप वहां पे डिफाइन करोगे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स ऑब्जेक्ट की. सेकेंड स्टेप आपकी होंगी, आप उन फंक्शंस को डिफाइन करेंगे जो फंक्शंस आपने क्लास में लिखे हैं, जब मेंशन किए हैं, वो फंक्शंस की डेफिनेशन होगी. उसके बाद थर्ड स्टेज में आप करोगे ऑब्जेक्ट क्रिएट इनसाइड द मेन फंक्शन. आप मेन फंक्शन लिखोगे, उसमें ऑब्जेक्ट्स बनेंगे. और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मैसेज पासिंग, मतलब कम्युनिकेशन अमंग द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो ऐसी 4 स्टेजेस में हम बेसिकली बोल सकते हैं कि एक प्रोग्राम कंप्लीट होता है ओओपी का. सबसे पहले क्लास डिफाइन करो, उस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस लिखो. सेकंड, उस फंक्शंस को डिफाइन करो जो आपने क्लास में लिखे हैं. थर्ड, मेन फंक्शन क्रिएट करके उसमें ऑब्जेक्ट्स बनाओ. और फोर्थ, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करो अमंग द ऑब्जेक्ट्स दैट यू क्रिएट. तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये इस मैसेज के थ्रू होता है, राइट? जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसी को मैसेज सेंड करते हैं, इन रिस्पॉन्स यू गेट सम मैसेज, सो दैट इज द कम्युनिकेशन. सिमिलरली ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं. तो ऑब्जेक्ट कैसे मैसेज सेंड करते हैं? दे कॉल अ प्रोसीजर. दे कॉल प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट फॉर देम. ऑब्जेक्ट किसी प्रोसीजर को बोलते हैं कि हाँ, कम एंड एग्जीक्यूट फॉर मी और गिव मी द आउटपुट फॉर दिस थिंग. सो इफ यू क्रिएट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यू कैन कॉल ऑल द प्रोसीजर्स दैट आर डिफाइंड इन योर क्लास. तो यहाँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल, एम्प्लॉय डॉट, ये डॉट ऑपरेटर है which is used to call the procedure using the object name. This is the name of method और function. मतलब ये वो चीज है जो आपको एक्चुअल रिस्पॉन्स में चाहिए होती है, इसलिए इसे मैसेज बोला गया है. और नेम यानी कि ये जो है ना, ये आर्ग्यूमेंट है, मतलब पैरामीटर. ये चीज क्या है? ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप पास कर रहे हो या हैंड ओवर कर रहे हो टू द फंक्शन.
कि मुझे इससे रिगार्डिंग ये डेटा चाहिए। तो इस मैसेज का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दिस मैसेज? क्या हो सकता है इसका मैसेज? इसका मीनिंग क्या हो सकता है? Anyone? इसका मीनिंग ये है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को ये नेम वाले पर्सन की सैलरी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज रिक्वेस्टिंग फॉर द सैलरी ऑफ द पर्सन विथ दिस नेम। यहाँ जो भी नेम पास होगा, ओके, फॉर नाउ वी हैव रिटन द नेम, बट यहाँ जो भी नेम पास होगा उस नेम वाले पर्सन की सैलरी डिस्प्ले करो, ये हुआ इस मैसेज का मीनिंग। तो यहाँ पे आप जब प्रोग्राम देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल दैट यहाँ सैलरी नाम का कोई ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड होगा प्रोग्राम में, जिसमें सैलरी डिस्प्ले होनी है नेम बाय टेकिंग द नेम एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ क्या होगा, एक सैलरी, एक डिजिट नाम कोई डिस्प्ले होगा फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। So this is the name of the object. This is actually the procedure name or the method name that you're calling, and this is the argument passed to that function. तो यहाँ इस नेम वाले पर्सन की सैलरी डिस्प्ले होगी। आफ्टर दिस मैसेज विल रन, और जब भी ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा कंपाइलर को, उसके बाद ये आउटपुट आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैसेज। So this is how the objects communicate in the program, OOP program, and the exact procedure is get called in that program depending on, you know, those three things: the return type of the function, type of argument, and number of arguments. So वही procedure उसके लिए follow। तो ये एक मैसेज है जिसके मेन कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट, ये डॉट ऑपरेटर, यहाँ है मैसेज दैट इज मेथड नेम, और ये इंफॉर्मेशन यानी कि आर्गुमेंट्स पास्ड। ओके, इज देयर एनीथिंग इन द चैट बॉक्स? अगर किसी को बीच में आवाज नहीं आ रही है तो आपको बताना होगा। लेट्स मूव ऑन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? मैम हेलो। हाँ बोलिए। मैम, कैन वी क्रिएट मल्टीपल इनहेरिटेंस? Yes, yes, you can create. Yes, yes, yes. Multiple inheritance. Okay. You can create from one class, multiple classes from multiple classes. You can create one class. Okay. So there is very different types of inheritance. As I've told you, single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance. जैसे एक क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो इसके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक से ज्यादा क्लास से एक क्लास बनाना, जैसे दो पेरेंट्स है एक चाइल्ड, तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक क्लास से एक क्लास इनहेरिट करना, इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, एंड देयर आर टाइप्स लाइक हाइब्रिड इनहेरिटेंस आल्सो, सबका कॉम्बिनेशन। तो वी विल लर्न देम इन डिटेल व्हेन वी विल then we will reach to particular chapter of inheritance। ठीक है, जब हम वहां तक ये करेंगे तो आपको इसके भी टाइप्स पता चलेगा। For now you I want you to understand the basic idea of inheritance। जो आपका ये जो टॉपिक है ना ओपी कंसेप्ट, पहले आपको इसमें बेसिक समझना है कि क्या मीनिंग है इनहेरिटेंस का, और प्रोग्राम में उसका क्या यूज है। दिस थिंग्स आर फॉर नाउ सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो वो चीजें आपको समझनी है, जैसे ये सब कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है वो चीजें आपको यहाँ समझनी है, और बाकी फिर आप प्रोग्रामिंग में इनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे जैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगी कि ये चीज वो थी जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, फिर ये चीज वो थी। सो एज एंड व्हेन दे विल बी एनकाउंटर्ड आई विल एक्सप्लेन देम और आई विल रिलेट देम विद दिस प्रीवियस चैप्टर। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो बेनिफिट्स ऑफ ओपी, तो यहाँ पे बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में आपको भले ही दिख रहे हो इनहेरिटेंस बेनिफिट्स लिखे हुए, बट दे आर वेरी इजी। तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। सिंपल मतलब हिंदी में बताऊंगी आपको कि व्हाट आर द बेनिफिट्स। सो ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस
इनहेरिटेंस ये जो कंसेप्ट है ओओपी में, इसकी वजह से आप कोड यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके प्रोग्रामर का डेवलपमेंट टाइम यानी कि कोड लिखने का टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको एग्जिस्टिंग क्लास से ही नई क्लास इनहेरिट करनी है, तो आपको फिर से वो कोड नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, इसके बाद इसमें डेटा हाइडिंग पॉसिबल है, और ये कंसेप्ट हम अचीव कर सकते हैं क्लास में एनकैप्सुलेट करने की वजह से डेटा। तो इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डेटा जो है वो उसी क्लास में लिखे हुए ऑब्जेक्ट के फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी दूसरा आउटसाइडर फंक्शन प्रोग्राम में अगर लिखा हो तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। Then easy upgrades are possible. How the easy upgrades are possible is again with the use of inheritance. क्योंकि upgrades करना यानी कि additional कुछ चीजें add करना, जैसे आप रोज अपने मोबाइल में देखते होंगे कि please update this app and that app. आपके इसमें जैसे अगर आप होंगे लाइक पीडीएफ के एप्स होंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर कैमरा एडिट और पिक्स एडिटर के ऐप होंगे, तो उसमें भी रोज ही कुछ अपडेट्स आती है। So how these updates are given? Because they are just extending the code. They are adding some extra features और कुछ उसमें नए additional चीजें। तो वो आपको क्या बोलते हैं कि आप अपना ऐप अपडेट करें so that you will be able to use those features. तो ये अपग्रेड्स ओपी में बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि आपको कोड को एक्सटेंड करना विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इजीली पॉसिबल है। So that's why you just take the existing thing and you add your code, and hence the updates are possible, means the updations. So from small to large systems, you can easily upgrade. And simple interfaces, with the use of message passing techniques, it is possible to use the overloading in OOP, and the exact procedure is executed. So there is no confusion to the compiler, or no ambiguities are generated which exact procedure to be called at the dynamic time. So that is a simple interface, and yes, the complexity is reduced, software complexity. तो ये इसके कुछ briefly मैंने आपको benefits बताया है, so you must able to remember them. अगर आपको concept समझ में आ गया है तो definitely you will be able to tell the benefits of OP. And these are some of the applications. मतलब ओपी जैसे अप्रोचेस वाली लैंग्वेजेस कहाँ यूज होती है और उससे कौन से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं या कौन सी मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज होता है, वो यहाँ पे लिखा है. So obviously OP languages, they are used to design the user interfaces. User interfaces में OS भी लिखी जाती है. OS means the operating system. Okay, so like Windows Real Business Systems, they can be written in the OOP language, like you know that OS provides the interface between human and machine, and these are easily manageable languages, so they can be used to write such interfaces. Then real-time systems, business management systems, सिमुलेशन सिस्टम्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उसका मीनिंग ये है जैसे आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो उसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने से पहले आप एक सॉफ्टवेयर में उसको टेस्ट करते हैं, उसे सिमुलेशन बोलते हैं. जैसे आपने नेटवर्किंग रिलेटेड अगर कोई मॉड्यूल डेवलप किया है और आपको जानना है कि हाउ दिस विल एग्जैक्टली वर्क इन द व्हेन आई विल implement it in the real world, तो उसका टेस्ट आप एंड सच सॉफ्टवेयर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं. जैसे NS2 जैसा एक नेटवर्क सिमुलेटर अवेलेबल है, होप यू हैव हर्ड द नेम. तो इसमें जैसे आप पैकेट का फ्लो या फिर कितना वहाँ पे कंजेशन होगा, ये सब चीजें आपको वहाँ पे दिखेंगी. तो वो सिस्टम्स भी ऐसे सॉफ्टवेयर भी लिखने के लिए, वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए आपके लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. Then OOP databases, hypertext means even the website designing can be done with this artificial intelligence, export systems, neural networks. So obviously robotics field में भी you can create the modules related to that in OOP languages. CAMCAD systems which are mostly used in civil and mechanical fields. So those softwares or their modules can be generated with these languages. So these are some of the main applications. Or if you're interested, you can learn the many more applications of the OOP languages. But these are some of the most familiar and well-known applications of OOP languages. Okay, so this concept